Hello students, I am Shobha from BR Global School. Today here we are going to start new chapter of Hornbill, that is, we are not afraid to die if we can all be together. This is written by Gordon Cook and Alan East. Okay, and you can see I have written this title in inverted commas. Do you know why do we use inverted commas? Yes, it means if we have written something in inverted commas, that sentence is basically spoken by someone. So here the subject is we, it means it is spoken by few people, and here in this, according to this chapter, it denotes a family. Okay, and what is that family saying? We are not afraid to die. We are not afraid. हमें डर नहीं लगता, हम नहीं डर रहे हैं. If we can all be together. Okay. Here, before going to start the chapter, I have made a list of characters that played major role in the story. The narrator, Gordon Cook itself, Mary, his wife. When story starts, at that time, narrator was of 37 years old, and his wife Mary, she also played a vital role in the story. Next is Jonathan, his son, narrator's son, and he was 6 years old. Suzanne, daughter of the narrator, at that time she was 7 years old. Larry Vigil and Herb Sigler. Larry Vigil, he is American native, and Herb Sigler, this person is Swiss native. Okay. So now let's start the story. I'll tell you the story in nutshell now. What happens in the story? The writer tried to copy the sea voyage of his ancestor. What they do? First, they bought, professionally built, and they named that boat Wave Walker. Okay, this boat was 23-meter long, and the weight of that boat was 30 ton. Okay, suppose this is a globe, although I am not good in drawing, but for sure you will get the idea, the route of the sea journey that they started. They started their sea journey from Plymouth, that is located in England. Okay, and they started their journey from here, then they went to here, Africa, and from Cape Town of Africa, they hired two crewmen, Larry Vigil and Herb Sigler, because they know very well after Africa they have to go to Southern Ocean, and it is considered as the most roughest sea route. So they needed help of crewmen. That's why they hired these two people, and then they go to east side and east route, and finally they reached their home. It was not an easy job. The sea journey, that voyage they started, it was not so easy. They faced lots of problems. Sea storm was there,
high waves they faced. So this was, let's see how they reached their home. Okay, so let's start the chapter now. So let's start the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो उन्होंने अपनी सी जर्नी स्टार्ट करी कब? They have started their journey in July 1976. बहुत टाइम पहले की बात है ना. तो वो जर्नी वो डुप्लीकेट करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते थे किसको? कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को, जो 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जर्नी की थी. सेम उसी जर्नी पे, सेम उसी से वर्ल्ड वॉयाज पे वो लोग भी जाना चाहते थे. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. जो उस टाइम पर जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, 37 ईयर्स ओल्ड था और एक बिजनेसमैन था, वो अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है. और उससे पहले अपने 16 ईयर्स उसने स्पेंड किए, अपने फ्री टाइम्स को उन्होंने स्पेंड किया हॉर्निंग करने में, इम्प्रूविंग करने में उनके सी फारिंग स्किल क्या होते हैं? जब आप सी में जाते हो तो आपको बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे वेव्स भी मिलने वाली हैं, स्टॉर्म्स को भी आपको फेस करना है. तो व्हेन यू एंटर दिस ओशियन, then you have to know so many skills that they have spent their 16 years to improve that. When they were going for British waters here means ocean, water itself means पानी, water है ना, लेकिन जब इसमें हम एस ऐड करते हैं it means it is ओशन. तो ब्रिटिश ओशन में जाने के लिए उन्हें बहुत सारे स्किल चाहिए थे, इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने 16 ईयर्स स्पेंड किए. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. एज आई टोल्ड यू दैट दे वांटेड टू कॉपी कैप्टन जेम्स कुक, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राइटर और द नैरेटर? Yes, that is Gordon Cook. So, do you think there is any connection, any relation between these two people? Yes, Gordon Cook actually the descendant of Captain James Cook. Okay, that's why he was even Gordon Cook is also a traveler, and Captain James Cook also a traveler. So कुछ चीज़ें जो हैं इनहेरिट भी हो जाती हैं ना, कहीं हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से हम सीखते हैं ना. तो सेम ऐसे गॉर्डन कुक ने भी बहुत सारे स्किल्स जो हैं कैप्टन जेम्स कुक, जो उनकी आगे जनरेशन आती गई उन तक पास होते गए. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden huddled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब जैसे जैसे उन्होंने अपने स्किल्स इम्प्रूव किए थे, तो ऑब्वियस था उनकी जो बॉट, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द नेम ऑफ द बॉट इज वेव वॉकर, एंड it was 23 meters long and the weight was 30 ton. It was wooden huddled beauty, means it was made of wood, had been professionally built, professional से उन्होंने बनवाया था इसे, and they have spent so many months even to fit it out and testing it. उन्होंने अपने स्किल इम्प्रूव करने थे, तो अब हर वेदर में उनको बोट को भी तो टेस्ट करना था ना, कि जो उन्होंने बनाया है जिस बोट को, वो सी वेदर, हर तरह के सी वेदर को फेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इतने लंबे वयाज पे जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, है ना. द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर, लेग मीन्स ईयर पार्ट, तो उनका जो फर्स्ट पार्ट था उनके 3 ईयर प्लान का, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो उन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी प्लाईमाउथ से, अब वो अफ्रीका से होते हुए वो कहाँ पहुँचे? अफ्रीका में, केप टाउन में. तो वहाँ तक फर्स्ट पार्ट उनका बहुत स्मूथली, बहुत अच्छा, प्लेजेंटली
पास हो रहा था, है ना. For before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Hub Sigler. तो उन्होंने केप टाउन में 2 क्रूमैन को लिया ताकि थोड़ा असिस्टेंस हो जाए, उनको हेल्प मिल जाए, है ना. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन. तो जो रफेस्ट सी माना जाता है, पहले उन्होंने अपनी स्टार्ट की थी, है ना. उसके बाद में अब बीच में उन्हें सदर्न इंडियन ओशन को भी क्रॉस करना था, और जो सदर्न इंडियन ओशन है वो रफेस्ट सी माना जाता है. तो वहाँ से क्रॉस करने के लिए उन्हें किसी की हेल्प चाहिए थी, प्रोफेशनल्स चाहिए थे, क्रूमैन चाहिए थे. सो दे हायर्ड 2 men, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिगलर. Okay. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. Strong gales means strong winds, तेज हवाएं. सेकेंड डे जब केप टाउन में था उनका, तो उनको तेज़ हवाएं मिलने लगी, वहाँ पे तेज़ हवाएं चलने लगी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली. गेल्स डिड नॉट वरी मी. अब कई वीक तक, नेक्स्ट कुछ हफ्तों तक तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली तेज़ हवाएं चलती रही, लेकिन वो गेल्स ने, वो विंड्स ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. Up to 15 meters as high as our main mast. I told you the mast, the structure on the boat, है ना. तो वो इतनी ऊंची थी, इतनी लंबी थी वो वेव्स, 15 मीटर जितना उनका मास्ट था. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. अब 25 दिसंबर हमें भी पता है कि दैट इज़ डे क्रिसमस डे. तो केप टाउन से वो आगे की ओर जा रहे थे 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट की ओर. तो एट्रोशियस मीन्स वी कैन से अ वेरी बैड वेदर, क्रूल वेदर. एट्रोशियस वेदर के बावजूद भी वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री. तो उन्होंने अच्छी हॉलीडे स्पेंड किया, क्रिसमस ट्री भी बनाया अपनी बोट पे. न्यू ईयर्स डे, सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट वी इट हैड टू चेंज सून. हमें लग रहा था कि शायद हमारे पास रीजंस थे कि शायद चेंज हो जाएगा ये जल्दी ही, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स. लेकिन वो चेंज तो हुआ, बट और वर्स हो गया, ख़राब हो गया. और एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक. अब उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया अपने शिप पे, 1 जनवरी, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया उन्होंने ना. नाउ एट डॉन मीन्स सनराइज़ का जो टाइम है, दैट इज़ डॉन ऑन January 2. सुबह सुबह January 2 की सुबह सुबह द वेव्स वर जाइगेंटिक. बहुत विशाल थी, एकदम वाइड, बहुत बड़ी बड़ी थी. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. छोटा सा उनके जिब जो था, मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया है. जिब क्या होता है, जो स्टॉर्म से, तेज लहरों से शिप को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है ना. तो एक कैनवस सा होता है, कपड़ा है जो शिप के बाहर लगा होता है. वर स्टिल मेकिंग 8 knot. 8 knots इज़ अ यूनिट टू मेजर द स्पीड, है ना. जैसे एक हम लोग लेते हैं जनरली किलोमीटर्स पर आवर, सेम वैसे ही शिप पे जो मेजरमेंट लिया जाता है दैट इज़ इन नॉट्स. तो नॉट्स पर आवर, 8 नॉट्स पर आवर वो अभी भी उस स्पीड पे चल रहे थे. स्टॉर्म था, वेव्स जो थी वो बहुत जाइगेंटिक थी स्टिल, एंड दे हैव अ स्मॉल जिब. छोटा सा जिब था, पर फिर भी अच्छी स्पीड उन्होंने कंटिन्यू की हुई थी. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous, same, very big seas rolling towards us. तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आ रही थी. And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और जो winds की जो screaming थी, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़, मतलब स्क्रीमिंग, जो विंड्स की जो आवाज़ें आती हैं, लहरों की जो आवाज़ें रहती हैं, स्क्रीमिंग, दैट इज़ द राइटर हैज़ यूज्ड द वर्ड स्क्रीम. एंड स्प्रे, और होता है ना स्पार्कलिंग करता है, स्प्रिंकलिंग करता है वाटर जब वेव्स आती हैं, तो उन पर पानी जो पड़ रहा था
उसकी आवाज़ें आ रही थी, दैट वाज पेनफुल टू द ईयर्स, क्योंकि उन्हें टेंशन हो रही थी कि वेव जो इतनी जाइगेंटिक हैं, इतनी एनॉर्मस हैं और इतनी वाइड हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं. एंड to slow the boat down, we dropped the storm zip and lashed a heavy mooring rope. Mooring rope क्या होता है? जो एक rope को ऐसे fold करके रख देते हैं. तो उन्होंने क्या किया, अपने zip को भी नीचे गिरा दिया और rope को भी looping में मीन्स नॉटिंग करते हुए, गांठे लगाते हुए स्टर्न जो है उनका बैक पार्ट जो है उससे उन्होंने बांध दिया. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, हर चीज़ पे उन्होंने डबल नॉटिंग कर दी. वेंट थ्रो आर लाइफ राफ्ट ड्रिल. लाइफ राफ्ट ड्रिल मीन्स एक्सरसाइज जो उन अपनी लाइफ को सेव करने के लिए वो कर सकते थे. अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उन्होंने जितनी भी उनकी लाइफ लाइन्स थी, लाइक जैकेट्स हो गई उनकी, जो भी वो चीज़ें लेके आए थे पहनने के लिए. डॉन्ट मीन्स पहनना, वियर करना. क्या क्या लाए थे? ऑयल स्किन्स होता है काइंड ऑफ कैनवस, थिक कैनवस कॉटेड विद ऑयल, जिस पे बाहर ऑयल कर दिया जाता है, तो उस कैनवस उस कपड़े को बोलते हैं ऑयल स्किन्स. एंड लाइफ जैकेट्स भी उन्होंने क्या की, डॉन्ट कर ली, पहन ली, वियर कर ली. एंड वेटेड, और फिर वेट करने लगे. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. तो अभी तो वो कंट्रोल कर रहे थे जिप से या लूपिंग करते हुए रॉप्स को, है ना. तो अब जो फर्स्ट इंडिकेशन उनको मिल रहा था डिज़ास्टर के आने का, दैट वाज एट 6 p.m. शाम के 6 बज गए और उन्हें लग रहा था कि अब कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है. एंडिंग हो रहा था, मीन्स साइनिंग, दे वर गेटिंग साइंस विद एन एनॉर्मस साइलेंस, मीन्स एंड थ्रेटनिंग साइलेंस, जो एक तरह से किसी तरह की वार्निंग दे रहा हो, ऐसा साइलेंस था. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. हवा तो रुक गई, तेज हवाएं तो रुक गई थी, लेकिन एकदम से जो स्काई था वो कैसा दिख रहा था, एकदम से डार्क हो गया था. देन केम अ ग्रोइंग रोर, एकदम से बढ़ती हुई रोरिंग की आवाज़ उन्हें आने लगी. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप. आफ्ट ऑफ द शिप मीन्स आफ्ट द बैक साइड ऑफ द शिप. उन्हें बैक साइड पे एक बड़ा सा क्लाउड नज़र आने लगा. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड. एकदम से डर तो लग गया था उसे, लेकिन फिर रियलाइज हो कि दिस इज़ नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. बट लेकिन इतनी बड़ी वेव थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतनी बड़ी वेव को. इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल. ये कैसी दिख रही थी? बिल्कुल एकदम सीधे, स्ट्रेट, ऊपर की ओर. एक होता है हॉरिजॉन्टल जो लैंडस्केप में रहता है, लैंड के पैरेलल रहता है, और एक होता है वर्टिकल जो बिल्कुल सीधा रहता है, स्ट्रेट, है ना. तो उस तरह से वर्टिकली कुछ अपीयर हो रहा था. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और जितनी पहले उन्होंने वेव्स देखी उससे ट्वाइस इन हाइट थी दैट वेव. विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट मीन्स द टॉप ऑफ द वेव. तो जो उसका वेव का जो टॉप था वो ऐसा लग रहा था कि अब जैसे जो पहले ऊपर की ओर उठ रहा था, बिल्कुल वर्टिकल था, अब वो नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है. और बहुत फ्राइटफुल था, डरावना था, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे अभी उनकी शिप में वो पूरी की पूरी वेव जो है ब्रेक हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी. द रोर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. और वो रोर, उसकी जो तेज आवाज़ थी वो बिल्कुल कैसे बढ़ती जा रही थी, जैसे कि कोई थंडर, गरजने की कोई आवाज़ होती है. एज द स्टर्न मूव्ड, जैसे जैसे स्टर्न जो बैक ऑफ द शिप था वो मूव हो रहा था, तो वेव का जो फेस भी था वो भी क्या था, उसकी भी वॉइस जो थी वो भी बहुत लाउड होती जा रही थी. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. कुछ पल के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए तो उसे ऐसा लगा राइटर को कि वो लोग उस वेव को बिल्कुल क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे. बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन, एक बिग ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन shook the deck, the upper part of the front part of the ship. तो एक जोर से एक्सप्लोजन हुआ और उसने हमारी डेक को, उसके अब फ्रंट पार्ट को शिप के शेक कर दिया. शुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. और एक बहुत सारा ग्रीन और वाइट कलर का वाटर जो है उनकी शिप पे बहुत सारा पानी आके गिर गया, मीन्स बहुत सारा पानी भर गया उनकी शिप में. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील.
उसका जो राइटर का सिर था वो स्मैश हुआ, टकराया व्हील से जो वो चला रहा था, है ना, व्हील को जिससे शिप को चला रहा था. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. तो जब उसे जैसे ही पानी उसमें शिप में आया तो उसे पता था कि वो जो सारी चीज़ें इधर उधर हुई जैसे ही, तो वो खुद भी क्या हुआ, पानी के अंदर जो शिप में था उसके ऊपर उसे लगा कि वो उसके ऊपर तैर रहा है. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, तो उसे लग रहा था कि उन वेव्स के नीचे वो डूब रहा है. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. उसे तो बस डेथ जैसा, डेथ लाइक एक्सपीरियंस हो रहा था. उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि बस उसकी डेथ अब वो आने वाली है, उसे वो मरने वाला है. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही वो जैसे कहते हैं ना अनकॉन्शियस हो रहा था, कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो रही थी. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. बेहोश होते होते वो क्या हो रहा था, उसे पीसफुल सा फील हुआ उस टाइम पे. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, अचानक से उसका सिर जो है पानी से बाहर आने लगा. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैपिसाइजिंग. कैपिसाइजिंग क्या होता है कि वो भी पूरी तरह से डूबने ही वाली थी, पूरी तरह से ओवरटर्न हो रही थी इन द वाटर. हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. अब देखो, मास जो प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से, वो अगर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाए, वाटर के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो वे जो बोट है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, फिर वो तो बिल्कुल पानी में हो जाएगी, तो सब कुछ ख़त्म. तो वो भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल थी, कंप्लीटली नहीं. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. तभी एक तेज सी हवा आती है और उसे अपराइट, सीधा कर देती है उनकी वेव वॉकर को. माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट. टॉट मीन्स पुल आउट करना. तो उसकी जो लाइफ लाइन जैकेट थी उसने क्या किया, जग्ड, एक झटके से खींच लिया. क्या, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स. और उसने वेव वॉकर को शायद पकड़ लिया होगा, और तभी क्या हुआ, उसने, राइटर ने ग्रैब्ड कर लिया, जकड़ लिया, पकड़ लिया अच्छे से गार्ड रेल को. रेल के, रेलिंग क्या होती है, जो बाहर जैसे स्टील की या वुड की जो बाउंड्रीज आप कह सकते हो, रेलिंग होती है हम लोगों के छत पे, स्टेयर्स पे भी रहती है ना साइड पे स्टील्स की, दैट इज़ रेल. तो गार्ड रेल्स को उसने ग्रैब कर लिया एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. बूम क्या होता है, एक तरह से पोल. तो उसने वेव वॉकर के मेन पोल को पकड़ के वो सेलिंग करके उसमें आ जाता है, बोट में. सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. और उसके बाद जो सबसिक्वेंटली जो वेव्स आती जा रही थी एक के बाद एक, तो उन्होंने क्या किया, उसे टॉस्ड कर दिया, उठा उठा के पटकना शुरू कर दिया, लाइक रैग डॉल. रैग क्या होता है, फटे पुराने कपड़े. जो फटे पुराने कपड़े की जो डॉल्स होती हैं उसकी तरह उसे डेक पे, वॉकर के डेक पे ही उसे टॉस करना स्टार्ट कर दिया वेव्स ने. माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. तो इतनी सारी इंजरीज होना पॉसिबल था ना, कि बार बार वो वेव्स की वजह से इधर उधर पटका जा रहा था, इधर उधर गिर रहा था. तो उसकी रिब्स जो थी, लेफ्ट रिब, वो क्रैक हो गई, और उसका माउथ था पूरी तरह से ब्लड से फिल्ड हो गया, उसके टीथ भी ब्रोकन हो गए. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. तो किसी तरह से उसने व्हील को पकड़ा, लाइन अप किया स्टर्न को नेक्स्ट वेव के लिए, और खड़ा हुआ. तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ा, फिर भी कितना स्ट्रगल करके वो फाइनली अपनी बोट को, अपनी शिप को कंट्रोल कर सका. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. ऑब्वियसली पहले एक बार वेव्स की वजह से उसका व्हील, उससे स्टीयरिंग जो है उसका छूट गया था, बट नाउ ही वॉज नॉट डेयर टू अबंडन, है ना. लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी उसके छोड़ने के लिए, व्हील छोड़ने के लिए. चाहे उसे इन्वेस्टिगेट ही करना था कि कितना पानी शिप में है, क्या चल रहा है. सडनली the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking. तभी उसकी वाइफ आती है, वो बोलती है हम तो डूब रहे हैं. The decks are smashed. टूट रहे हैं, टकरा रहे एक दूसरे से. We are full of water. और पूरी बोट में पानी ही पानी है. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. The writer
said to his wife that take this wheel, the steering, and I have to go to hatch to the door. उसे डोर के पास जाना था, स्क्रैम्बल करना था. स्क्रैम्बल मीन्स टू क्लाइम, उसे पकड़ना था, उन्हें डोर की तरफ जाना था. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन. दोनों पंपिंग कर रहे थे, मीन्स पानी को बाहर निकाले थे शिप से. ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स मीन्स वुडन, द शिप वॉज मेड ऑफ वुड. सो जो टिम्बर थी वो ब्रोकन हो चुकी थी. हंग एट क्रेजी एंगल्स, इधर उधर लटकी हुई थी क्रेजी एंगल्स में, कुछ भी किसी भी एंगल से. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. तो स्टारबोर्ड क्या होता है, साइड ऑफ द शिप, तो वो भी क्या हो चुकी थी, इंक्रीज. बल्ज जो है ना, स्वेल हो जाना, अंदर से जो टिम्बर थी है ना वो फूल चुकी थी, स्वेल हो चुकी थी. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था, तैर रहा था. I half swam is the second form of swim. Half crawled into the children's cabin. तो किसी तरह से नरेटर जो है थोड़ा तैरते हुए, थोड़ा क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए चिल्ड्रन के कैबिन्स तक पहुंचता है. Are you all right? I asked. Obviously two children. Yes, they answered. फ्रॉम एन अपर बंक, मीन्स अपर रूम, अपर सीट जो थी बंक, उससे वो आंसर करते हैं, बैठे हुए थे वहाँ पे. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज. उसके आइज के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर स्वेलिंग हो गई थी, कुछ हिट किया होगा जिसकी वजह से बम्प हो चुका था. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. तो उसके पास कोई टाइम ही नहीं था ज़्यादा उस चीज़ को सुनने के लिए, कि उसे तो यही था कि बच्चे ठीक है, दैट्स इट. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस मीन्स अ क्लॉथ, ये सब चीज़ों को लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. फिर वो दरवाजे के पास जाता है. विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड अपॉन ओपन. बैश्ड ओपन मीन्स वो जो स्टार बोर्ड की साइड होती है उसको वो हिट करके ओपन करता है. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. हर जो वेव है अब ऑब्वियसली आ रही है तो उनमें पानी भी होगा, तो उन वेव्स की वजह से बहुत सारा पानी आता जा रहा था और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था, कि पानी आ ही जा रहा था बोट में. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. अगर वो रिपेयर्स नहीं करता, रिपेयरमेंट नहीं करता, तो वो लोग ज़रूर डूब जाते. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch of covers across the gaping holes. तो किसी तरीके से नैरेटर ने क्या किया, कैनवस को स्ट्रेच किया और सिक्योर कर लिया वाटरप्रूफ हैच कवर्स. तो कैनवस से उसने क्या किया, एक तरह से कवर्स बनाए, ताकि वो कवर्स किसके बनाए, गैपिंग होल्स के. होल्स जो बीच बीच में होल्स हो गए थे वेव्स की वजह से, पानी तेज की वजह से, तो उनको उनमें एक तरह से उसने कैनवस डाल के, कपड़ा डाल के या हैच को एडजस्ट करके उसने वो कवर कर दिया हॉल्स को. सम वाटर continued to stream below but most of it was now being deflected over the side. थोड़ा थोड़ा तो अभी भी पानी आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर क्या था, they were succeed to deflect the water. वाटर की जो साइड थी वो दूसरी तरफ होने लगी, मतलब उसका पानी का जो बहाव था दूसरी साइड होने लगा था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. अब मेन प्रॉब्लम तो आई कि जो पंप्स थे जिनसे पानी निकाला जा रहा था उनमें डेब्री यानी कि जो कूड़ा वगैरह था वो फंस गया था, और जिसकी वजह से पंप्स क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए. द वाटर लेवल रॉज थ्रेटनिंगली. अब पानी बढ़ता जा रहा था, पानी निकालने का कोई सोर्स नहीं होता उनके पास. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन ड्रेंच्ड ओवरबोर्ड. उसने पाया कि जो 2 एक्स्ट्रा उसने रखे हुए थे हैंड पंप्स वो पूरी तरह से रैंच्ड हो गए, टूट गए. अलोंग विद द फोरस्टे सेल. फोरस्टे क्या होता है, मास्ट को सपोर्ट करने वाला जो पार्ट है, दैट इज़ फोरस्टे सेल. जिप जो हमें पता है स्टॉर्म वगैरह से प्रोटेक्ट करता है. द डिंगीज़ मीन्स स्मॉल बोट्स एंड द मेन एंकर. तो ये सारी चीज़ें उस हैंड पम्प्स के साथ साथ ये सब चीज़ें भी ख़राब हो चुकी थी, रेंच्ड हो चुकी थी.
ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया था उनका. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. तो उसे याद आया कि उनके पास कोई एक दूसरा भी हैंड पंप रखा है चार्ट रूम में फ्लोर पे. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. फाइनली उसने उसे कनेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा रखा होता है इलेक्ट्रिक पंप उसे पाइप से कनेक्ट किया और थैंकफुल हुआ कि वो काम करने लगा. द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. तो इस तरह से पूरी रात उनकी कैसे बीती. 3 तरह के काम कर रहे थे वो. एक तो पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे, स्टीयरिंग चला रहे थे, और तीसरा काम वर्किंग ऑन रेडियो. रेडियो से वो दूसरे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मिड डे कॉल्स. मिड डे कॉल्स मीन्स डिस्ट्रेस कॉल्स, यानी अगर कोई पर्सन सी में है और कोई मुश्किल में है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पहुंचाई जा सके. तो कहीं से कोई भी कॉल मतलब उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. नेचुरल था, कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी कि क्यों नहीं पिक कर रहे, कोई कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर रिमोट एरिया में, रिमोट कॉर्नर पे थे वर्ल्ड के. Sue's head had swollen alarmingly. बहुत ज़्यादा swelling आ चुकी थी उसके सिर पे. She had 2 enormous black eyes. Eyes भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी. And now she showed us a deep cut on her arm. उसकी आर्म पे भी उसने दिखाया एक डीप गहरा कट आ चुका था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तो जब मैंने उसे पूछा कि क्यों नहीं उसने पहले मुझे इस सारी इंजरीज के बारे में बताया, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से, देखो छोटी सी बच्ची है, only 7 years old. कितना करेज दिखाया ना उसने कि अपने पापा को इतनी मुसीबत में देख के उसने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा. Here we have covered our first part of the chapter.